हो रहा है, where we have the coordinate bonds. In this coordination sphere or the coordination entity, we have a central metal atom. This central metal atom is, generally speaking, most of the time is a D block element. It is a D block element, and in your case, it will be most of the time, it will be of 3D series. Okay, scandium, titanium, and vanadium series se hoga ye 3D series, it will be present. Okay, next we have, there will be other group of atoms or atoms which are known as ligands, and these ligands are giving and sharing electrons with the d orbitals of the metal. So this is what the coordinate bond is present, and that is why we know this as coordination compounds. Then we have counter ion, because when you have a metal atom and there are ligands forming bond with it, it will have some kind of charge. Okay, and when it has some kind of charge, that charge should be balanced by a counter ion. So this is a counter ion. Now counter ion can be general ions also, or it can be another coordination compound. It can be one coordination compound with some charge, the other coordination compound is also with some charge. Okay, so this is coordination sphere. Then we have counter ion, central metal atom or ion, and then we have ligand. So please write this down, the basic structure of coordination compounds. And then write this question. Which of the following complexes is used as an anti-cancer drug? Okay. I hope all of you have written this. Now write this question. So what is the coordination sphere in the above picture? Coordination sphere is this part. Whatever is inside the square bracket, na? Hai na? Okay. This is the coordination sphere. Okay. Some of you must be knowing what is used as an anti-cancer drug, और शायद आपको उसका नाम पता हो. What is the name? Cisplatin. Right? Now, what is the structure of cisplatin? What ligands are present? You have fluorine and NH3 in cis form. So you have platinum. And then you have NH3. NH3. Sorry, this will be trans. NH3, Cl and Cl. Okay. So the correct option is B. Cis PtCl2 NH3 whole twice. Okay. So यहाँ पे एक square bracket होना चाहिए, जो कि missing है. This is just a typing error. But the correct answer is this: cis PtCl2 NH3 whole twice. This is also known as cisplatin. इसको लिख दीजिए. कभी-कभी ऑप्शन में आपके पास नाम होगा, स्ट्रक्चर नहीं होगा. चलिए, moving on. The sum of coordination number and oxidation number of metal M in the complex MEN2 C2O4, and then here outside the counter ion that we have is fluorine. ठीक है, तो जहां तक आप लोगों को याद है 12th के हिसाब से I'm giving you guys 2 minutes to calculate the coordination number and the oxidation state, और उन दोनों का सम कर दीजिएगा कितना आ रहा है. ठीक है, चलिए 3 मिनट दे देते हैं आप लोगों को. That will be enough. जिनको आ रहा है वो उनको आ जाएगा 3 मिनट के अंदर. If not, then we will explain this. Here En is ethylene diamine and C2O4 is oxalate ion. दोनों के स्ट्रक्चर्स अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा हेल्प करने के लिए चलिए 1 मिनट के बाद हम स्ट्रक्चर बना देते हैं. ठीक है, लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल बाकी कितने लोग का आंसर आ रहा है. ओके, अर्पित has answered. Arpit, is this your first class?
or you're coming after a very long time? Sir, Yes, I Arpit? actually left some classes in between, sir. I was not at all well, so. अच्छा, you hi, I remember you in the starting. ठीक है, okay, fine. अच्छा, आपने आंसर कर दिया. Okay, we will see this answer. Seems. Oh, wait a second. Okay, Sumaira. Arpit, can you tell me what is the oxidation state that you are getting for the metal in the chat? The oxidation state that you are getting for the metal? You have not calculated. Sorry, let me show the structures. Ethylene diamine, you have CH2, and then you have so this is the structure of ethylene diamine. CH2 and CH2, both CH2s have amine group. So that is why this is ethylene and you have diamine. Next we have C2O4, that is oxalate. Oxalate has a structure which is O negative, O negative. So here we have two carbon atoms. Both the carbon atom had OH, so oxalic acid ho jata. Since they are oxalate, that means it is going to have only O negative atoms. Okay. Now both of these are what? Both of these are bidentate ligands. And if they are bidentate ligands, then En whole twice. What does it mean? En whole twice means how many coordinate bonds will be there? One En makes two bonds and two En will make four bonds. Then we have C2O4. C2O4, we have one C2O4 and each C2O4 makes two bonds. That means it is equal to 2. So 4 plus 2, that will be equal to how much? 4 plus 2, that will be equal to 6. So 6 is the coordination number. So हमारे पास coordination number कितना आ चुका है? We have got 6 as the coordination number. Now what is the oxidation state? So please let us look at the charges that we are having. So for metal, I will take X. En, I will take 2 into 0 because ethylene diamine does not have any charge. Plus C2O4 has 2 negative charge, minus 2. And plus we have chlorine that is equal to minus 1. This whole thing will be equal to 0. So I can write X is equal to minus 2 and minus 1 will go there that side and it will become 2 plus 2 and plus 1, that will be equal to 3. So 6 plus 3 is equal to 9. So D would be the answer. Yes, Abhinav, correct. Arpit, kahan galat ho gaya aapka? I think the oxidation state was wrong, na? Yes, sir. वही हम पूछ रहे थे आपसे, what is the oxidation state that you are getting? आपने आंसर Sir, actually, sir, मैंने coordination number से किया. मैंने बाद में देखा कि oxidation state भी add करना है उसको. अच्छा अच्छा. So can you explain this C2O4 में 6 वाला part again? No, Haider, can you please speak a bit loud? Just wait a second, Haider. Let me plug in my earphone. Just a second. हाँ जी, Haider, बताइए. Sir, C2O4 में 6 वाला part, like after 2, how did 6 come? नहीं, this is coordination number. Oh, Coordination number है ना? Coordination number क्या होता है? Number of coordinate bonds है ना? जो ligands बना रहे हैं, ठीक है? Number of coordinate bonds. कितने coordinate bond बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे. अच्छा, यहाँ पे हमने ये चीज बोलना भूल गए थे. Here they are writing 6 as the coordination number because Cn एक bond बनाता है and 6 Cn will make 6 bonds. It is not how many ligands are present, but rather how many bonds the ligand is making with the metal atom. That is the coordination. All of you got this, Isano, please tell me. yes, sir. Okay. Right, the next question. Now this is again
अगर आपको इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट का स्ट्रक्चर पता है, then you will know it, है ना? Giving guys 1 minute for this. जितने लोग आंसर आता है वो लोग ट्राई करेंगे, and those who don't know they can write it down, है ना? 1 मिनट लीजिए सवाल के लिए। काफी लेट आ रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, एंड यू कैन सी वन मोर न्यू स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम सानिया, इज दिस योर फर्स्ट क्लास? यस सानिया। Yes, sir. ओके, वेयर आर यू फ्रॉम सानिया? Oh, I'm from Delhi. You stay in Delhi or you live somewhere else? No, I live somewhere else. I mean, from India and from Delhi. Achha, India and Delhi. No, no, I'm actually asking that because many of the students here, they are from the Gulf countries, है ना? Yes, yes, चलिए ठीक, काफी लोगों को आंसर इसका पता था, है ना? Also, those who don't remember this, तो हम इसको नाम से ही आप लोगों को बता देते हैं। You don't have to remember the structure. From the name itself, you can understand how many coordinate bonds are there. If wherever you see nitrogen in coordination chemistry, please remember nitrogen has a lone pair electron and it will be donating electrons from that lone pair. Now, carbon does not have, generally carbon के पास lone pair नहीं होता। जो generally होता है ना, आप उसको दिमाग में रखें। What generally happens? Generally nitrogen के पास lone pair होता है, तो उसके पास होगा, ठीक है? Ethylene में there will be no lone pair electrons. Here we have diamine, तो यहाँ से कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 2 बॉन्ड बन जाएंगे। Then you have tetraacetate, अभी आपने देखा oxalate, acetate, तो जब भी टेट का वर्ड आएगा ना, then what you will remember, एंटीटेट को नहीं याद करना। क्या याद करना है आपको? आपको याद करना that there will be O negative। क्या होगा यहाँ पे? O negative। So please remember whenever there is this word acetate या फिर कुछ टेट आ जाए, तो आपके पास कितना होगा? एक O negative होना चाहिए। Okay, in organic chemistry, जैसे for example you have ऑक्सलेट होता है, फिर उसके बाद उसी तरह से फेनॉक्साइड आयन होता है, फिर उसको फेनॉक्सलेट भी बोलते हैं, है ना? We call it फेनॉक्सलेट। So whenever you have that O negative, तो उसके लिए 8 आता है, and you have how many O negative? टेट्रा, तो क्या हो गया? 4। कितना हो जाएगा आपके पास? 6। तो ये दो जो बन रहे हैं किससे बन रहे हैं आपके पास? नाइट्रोजन से बन रहे हैं। और जब भी आपके पास क्या आ जाए, टेट आ जाए, तो आप क्या रखिएगा? O negative रखिएगा। So what's the correct answer? Hexadentate with 4 O and 2 nitrogen donor atoms। ये आपने टिक किया इसको, ठीक है? So I hope आप लोग को अब स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं। From the name itself, you can derive how many bonds it can make with the metal atom. Now moving on to IUPAC nomenclature. So there are a few rules for IUPAC nomenclature. First of all, आप उसको लिख लीजिएगा. Then with examples we can understand them also. ठीक है? Some of it you will remember coordination chemistry because it was there in your 12th standard also. So first of all, write these few rules. बहुत ही short में है for all of these things. First of all, for anionic complex, I will give you a few hints. उसके बाद आप अपने चालू कीजिएगा। Anionic complex का क्या मतलब होता है? The anionic complex means this complex has, the whole complex has a negative charge. ध्यान रखिएगा। The whole complex has what? The whole complex has a negative charge. Please remember, I am not saying the metal atom has a negative charge. Okay, what I'm saying the whole complex is having a negative charge. इसका सबसे बढ़िया सबूत क्या होगा? What will be the best evidence that the coordination complex is negative? That it has a positive counter ion. The counter ion that is present, that is what it is, a cation. Potassium S block element cation होगा, सोडियम रहे cation होगा। अगर आपके पास बाहर में कोई और मेटल हो ना, outside the coordination sphere you also have a metal, then that metal will be possessing a positive charge. इसका क्या मतलब? coordination sphere जो है, coordination entity है, that is having a negative charge. So that is an anionic complex. For that, what you have to write? You will first of all write the common name of the cation. पोटेशियम है तो पोटेशियम लिख दिया, सोडियम है तो सोडियम लिख दिया, मैग्नीशियम मैग्नीशियम लिख दिया आपने, है ना? And after that, you are going to write the name of the complex. Now, in complex, we start with the name of ligands and then write the name of the central metal atom or the ion. Now, you have to be very careful in this case when you have an ionic ligand, that you will use the Latin name of the central metal ion along with the suffix ate.
फॉर एग्जाम्पल जैसा कि यहाँ पे Fe है, आयरन नहीं लिखना है या फिर आयरनेट नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, फेरेट लिखना पड़ेगा. Similarly, if you have copper, so you will write cuprate. If you have cobalt, you will write cobaltate. If you have silver, then you will not write silver, you will write argentate. If you have gold, you will write orate. Okay, so please remember these things. Next, we have for cationic complexes, then you don't have to worry about cationic complexes. The sequence will be same. First of all, you will name the cation, and here cation is complex. So complex means सबसे पहले ligand, then common name of the central metal atom. उसमें आपको Latin name नहीं, common name use करना. For example, if you have iron, तो iron use करेंगे. Silver तो silver use करेंगे. Then the oxidation state of the metal and Riemann numbers, and then the name of anion. ठीक है, आपको नाम देना किसका, anion का लिख देना. For neutral species, it is similar to that of cationic species. इसमें आपको कुछ नहीं लिखना रहता. And when you have oxidation state, तो उसको zero से आप ये कर देंगे. ठीक है. Now, when you are writing the name of the ligands, and if you have multiple ligands, for example, यहाँ पे आपके पास amine भी है and chloro भी है. So please यही ध्यान रखिएगा. When you write diamine ना, and then you write, let us suppose, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा था, diamine नहीं था, triamine हम लिख देते ना. For example, you had triamine and you had one chloro. तो इसे बच्चे बोलने लगते हैं सर C तो पहले आ रहा है, T बाद में आ रहा है. You may get a confusion कि C पहले आ रहा है, क्लोरो पहले लिखेंगे, triamine को बाद में लिखेंगे. But I will say no. You have to see the name of the ligand. क्या लिखना है आपको? You have to see the name of the ligand. तो name क्या है? Amine. हम पूछेंगे कौन सा amine, तो आप नहीं बोलेंगे triamine लगा हुआ है. You will say amine लगा हुआ है sir. So if you will write amine, then the name starts with A. You have to look at the name of the ligand without the numerical prefixes. Okay, and then you will arrange. You will write them in alphabetical order. So diamine, dichloro, platinum, and 2, that is the oxidation state. I hope this is clear. Please write this thing down. Let me know once you're done, and then we will do some questions. Now I again see a few new students. Nimra, assalamu alaikum. Nimra, can you hear me? No, Nimra can not hear me. Okay. Kiran के तो कुछ classes हो चुके हैं. Kiran is not new. Alia has also done a few classes. Nimra was new here. सानिया, आप कौन से स्कूल में थे दिल्ली में? ये सानिया. दिल्ली में नहीं, means like मैं अभी गल्फ कंट्री में रह रही हूँ. So like Oh, I different. Where do you study? I studied from IS Jubail. Jubail. Yes. Okay. Not many students from IAS Jubail. I had students from Dammam, right? Not Dammam, Dammam, we had some students, and Riyaz, Jeddah. Jubail, I think the first. Is this your first class, or you have done physics, bio, really, at Learnivio? I've done all of the subjects before. This is my first class with you. You have also done chemistry class with Hassan sir? Yes. Achha, okay, so first class. So what is the difference between C and D? Like what is D used for? D is used for just apply alphabetical order. यहाँ पे, this is the main part. Apply alphabetical order when writing the name of the ligands. That's it. This is for all of them. Oh, okay, sir. Okay. ठीक है. थोड़ा सा वर्डिंग से यहाँ पे कुछ आपको ये लग रहा होगा, या आप इसको काट दीजिए. Apply alphabetical order when writing the name of the ligands. The first question जो हमने रखा है यहाँ पे, that I will do because उसमें ये rules तो हैं, but आपको शायद थोड़ा सा कुछ नया लग जाए, है ना? That is why I will do that first question, and then आगे के सवाल आप कर लीजिएगा. Please let me know once you're done, guys.
Done, sir. See this question. In this case, what do we have? In this case, we have this is your cation, which is also a complex. This is anion, which is also complex. Okay. So you have to first of all, you will name the cation, and then you will name the anion. Okay. Now there are a few things जो ना थोड़ा practice से आपको आ जाएगा, जो हम पहले आपको करके बताएं. For cation, ये जो होगा, इसका नाम क्या होगा? Silver होगा. It will be silver, and for anion, it will be what? Argentine. This will be argentate. अब आप सबसे पहले ऑप्शंस में देख लीजिए कि सिल्वर आर्जेंटेट वाला कॉम्बिनेशन कहाँ पे. You will see a silver argentate, silver argentate, silver argentate, silver argentate subject. Now what is the difference? Oxidation state का difference. So first of all, you will see oxidation state यहाँ पे. So please see oxidation state. Now this Ag and this Ag both will be X. आपने ले लिया 2X for Ag plus H2O is neutral, so 2 into 0 plus you have Cn2, so 2 into minus 1. This will be equal to 0 because overall यहाँ पे कोई charge नहीं. So I can write 2x is equal to 2 and x will be equal to 1. So the options with oxidation state 1 will be correct. So either C or D. अब आप C or D में देख लीजिए in which you have the correct option. So first of all, see dicyanide disilver, that is talking about cation, but that is not right because यहाँ पे H2O है, cyanide नहीं. So what I will see the next option that can be correct, that is D, diaquat silver, that is correct. Diaqua, that is 2 water molecules and silver 1. Then you have dicyanide argentate 1. So this D will be the correct option. All of you understood? So यहाँ पे जो एक चीज अलग थी, that was when you have a complex in which the both cation and the anion are coordination spheres, then in that case the central metal atom will have the same oxidation state. So you will take X and X for both of them, and then you will calculate what is the value of X. That will be the oxidation state. Chaliye, please write this down. And then you will do the next question. Done. Try this. You have got one answer. Yeah, I think that is correct, Arpit. Very good. Yes, Samira, yes, Serum, correct. Heather, can you please see if there is a better option? I think you're getting, yes, correct, Heather, very good. Okay, so most of you are getting it right. Since here we have 3 negatives, so it will be ferrite, and you don't have to see even ferrite. All of these are what? Ferrite only. All of these are what? Oxidation state 3, so you don't even have to calculate the oxidation state.
So the only difference will be the number of ligands and the name of ligand. They have written hexacyanetoferrate. ठीक है, तो cyanetoferrate को आप टिक कर सकते थे अगर बाद में कोई ऑप्शन cyanide नहीं होता तो, बिकॉज आप सोचते कि चलिए ठीक है यहाँ पे टाइपो है, बट हियर वी हैव अ करेक्ट ऑप्शन hexacyanetoferrate. ट्राई तो हो नहीं सकता, hexacyano iron भी नहीं हो सकता, राइट? सो iron cannot be there because it is anionic species. Very good, got it right. So what's the difference between cyanide and cyanito? साइनेटो गलत है और साइनेटो सही. साइनेटो इज नॉट, कुछ नहीं होता साइनेटो. Okay. Try this question. ये basically it's not from IPAC nomenclature, but it is just asking it is what, एक न्यूक्लियस है इसमें, दो न्यूक्लियस है, चार न्यूक्लियस है. न्यूक्लियर का मतलब होता है सेंट्रल जो चीज होती है ना, तो न्यूक्लियस का मतलब होता है सेंट्रल में आपके पास एक है, दो है, तीन है, चार है. यस, इरम वेरी गुड, करेक्ट, दैट इज मोनोन्यूक्लियर है. सेंटर में आपके पास क्या है, इसी तरह से आपके पास और भी कुछ आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल these things, this was mononuclear. अगर कोबाल्ट 2 and carbonyl 8 this is dinuclear. Fe3 होता and carbonyl 12 then this will be trinuclear. ठीक है, तो write these examples also. एक बार आपको चलिए moving on, isomerism. ठीक है, first of all we have structural isomerism. In structural isomerism we have different isomerisms such as ionization, hydrate, linkage and coordination isomerism. First I will see how to identify whether there is a ionization isomer, hydrate isomer, linkage isomer, coordinate isomer, कहाँ कहाँ पे हो सकता है. So for ionization isomer what you have to see if there are ions inside the coordination sphere and outside the coordination sphere. अगर inside and outside दोनों जगह आपके पास क्या है, ions है. For example यहाँ पे देख सकते हैं आप, here you have Cl2 and Br2, right? So in this case Br2 can go inside, Cl बाहर आप लिख सकते हैं. So that will be two different type of complexes, but formula दोनों का सेम होगा कि दो क्लोरीन है, दो Br है, चार NH3. So that type of isomers are known as ionization isomers, in which if you exchange the counter ion with ligand, the formula remains the same. ठीक है, formula क्या रहेगा, same रहेगा. Hydrate isomers are those in which what you can do, you can bring, जैसा ions में क्या करते थे, ions में exchange करते थे ions का, यहाँ पे water से exchange कर सकते हैं आप. So okay, so if you see water somewhere, then वहां पे आप प्लीज मान लीजिए water with some ligands or water with some counter ions that is anionic in nature, that means you can directly say that it is a hydrate isomer. तो water के केस में कभी आपको दिखे तो आप क्या बोलेगा, hydrate isomer है. Linkage isomer, how will you identify linkage isomer? Linkage isomer can be identified with ambidentate ligands. If you have ambidentate ligands, then it will be showing linkage isomer. For example, if you have NO2 negative, NO2 negative can form a bond with nitrogen, or if you have ONO, then it will form with bond with nitrogen. Sorry, not a, it will form bond with oxygen. So what is the difference? It is linking with nitrogen. The metal is linking with nitrogen in the first case. In the next case, it is linking with oxygen atom. That is the difference. Formula में कोई change नहीं आने वाला. That is why it is just a linkage isomer. Difference कहाँ पे? Linkage में difference है. Now the last one is. Wait a second. Yeah. Last one is coordination isomer. In coordination isomer, there is a exchange of the ligands. This is only when you have cation and anion both in coordination entities, then you will write it as a coordination isomer. It can form coordination isomer or it will show coordination isomerism. The only change that is happening here is NH3 is going to cobalt, sorry, and Cn is going to chromium. Now, if NH3 is going to cobalt, then obviously cobalt will be in positive state because NH3 के पास तो कोई charge नहीं होता, right? So cobalt will become cationic in that case, and Cr will become anionic in that case. ठीक है, if Cr को Cn मिल जाए तो. That is why you also see there is an exchange of places between the metal atoms. This is only because Cn is negative charge. So whatever metal is attached with Cn, it will be anionic, and NH3 is neutral in charge.
That is why whatever atom is attached with NH3, it will be always cation. So please write these things down. And I have told how to identify ionization isomer में ion का exchange, hydride isomer में H2O का exchange, linkage isomer में if there is ambident ligand, coordination isomer में you will have two coordination entity, एक cation और एक anion, तो वो coordination isomer show करेगा. ठीक है, please write it down, then we'll look at some questions. Let me know once you're done, please. Done, guys? Yes, I hope you tell me. Is everyone done? Yes, sir. Try this question. इसमें almost सारे ही आ गए. Solvate isomer is just another name for hydrate isomers. Okay, solvate and hydrate isomers are same things. Okay, we have got some answers. Okay, Sania, Samaira, Arpit, Haider, Alia. Okay. Haider, are you sure? Please see. ऐसे आपके पहले इसमें ये गलती कैसे हो जाती है? Okay, fine. Let us see this. First is quite visible. NO2 and ONO. So obviously it is going to be linkage isomer. तो first का क्या हो जाएगा? Third हो जाएगा. Right? So first का third आपके पास B option में है and D option में है. Second is we have two different coordination entities. So obviously this is going to be coordination isomer. So this is going to be
B cut 2, and it is D option. Yes, Anna, correct. Very good. Yes, all of you gave the right answer. Moving on, we have stereoisomers. Stereoisomerism में आपके पास दो होते हैं, geometrical isomer and optical isomer. Now, in stereoisomer, you will completely copy this chart, and in this we have important points, that is MA2B2, MA2BC, MA3B3, MA4BC, MA4B2. ठीक है? So these are the 5 type of structures that I can say in octahedral and squareplanal मिला के जिसमें आपके पास सवाल बनते हैं. In tetrahedral, you don't have any geometrical isomers. ठीक है, तो generally इससे सवाल नहीं बनते. And whenever there is a talk about stereoisomerism in coordination entities, then they usually talk about geometrical isomers. Stereoisomerism के बारे में उतनी ज्यादा वहाँ पे बात नहीं होती. ठीक है? So please make this chart, and in this I will explicitly explain MA2B2, MA2BC, and इसी से फिर I will also explain MABCD. ठीक है? Even though ये इतना आता नहीं है. Then MA3B3, A4BC, MA4B2. ठीक है? ये सारी चीजें हम पहले समझा देंगे. But first of all, you will write this whole thing. ठीक है? इसको प्लीज लिख लीजिए. एक तो ये इंपॉर्टेंट है, एंड देन विथ bidentate ligands में आपके पास ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है? these points. MAA, this AA is a bidentate ligand. A2 type of complex have 2 geometrical isomers, cis and trans. इसमें से cis का क्या होता है? Mirror image होता है. तो total 3 stereo isomers होते हैं. ठीक है? So this is also very important. याद रखने के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Whenever same type of ligand placed at 180 degree, it will not show optical isomers. Let me know once you're done. आराम से लिखिए इसको. कोई चीज अगर नजर नहीं आ रही है, then please ask me.
Done, sir. All of it done? ठीक. अच्छा, बिफोर गोइंग टुवर्ड्स एनीवेयर, पहले हम मेन कंसेप्ट समझा देते हैं आपको। टेट्राहेड्रल में तो होता नहीं है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेट्राहेड्रल में होता क्यों नहीं है एंड क्या खास है स्क्वायर प्लेनर में एंड ऑक्टाहेड्रल के केस में, दैट वी सी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन दोस केसेस। ठीक है, टेट्राहेड्रल में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा आपको, ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलेंगे। नाउ व्हाई इज दैट? Please remember, tetrahedral has only one type of bond or one type of bond angle. Tetrahedral has only one bond angle. क्या होता है टेट्राहेड्रल में? All the bonds are what? 109.5 degrees. आप चाहे ABCD, किसी ABCD अगर मान लीजिए आपके पास लिगेंड्स लगे हुए हैं, ABCD में आप किसी के भी बीच का बॉन्ड देख लीजिए, it will be always 109.5 degrees. That is why it does not have geometrical isomer कि A से लेके B तक का डिस्टेंस, B से C तक का डिस्टेंस, C से D तक का डिस्टेंस, it is not going to change if you are changing the positions of C and D. ठीक है, it is not going to change. But let us look at square planar. We have metal. अब ये ध्यान रखिएगा, ऐसे जब हम बनाते हैं तो आपको रेक्टेंगल लगेगा, बट इट इज स्क्वायर, है ना? आपको वो स्क्वायर के केस में देख के बताते हैं, ठीक है? We have kind of a square here. ठीक है, and here now we have ABCD. अब यहाँ पे देखिए the distance between A and C इस केस में and the distance between A and C in another case, अगर हम C और D के प्लेस पे एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है, the formula remains same, ABCD ही लगे हुए हैं, but now the distance between A and C has changed. A and C का डिस्टेंस अब क्या हो चुका है? कम हो चुका है, and that is why the difference जो आता है यहाँ पे ना, as you see in all the previous cases, जब भी हम आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, then we talk कि क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, right? What is changing here? Ionization में ions change, hydride isomer में water changes, linkage isomer the linkage changes, coordination isomer with ligands which is coordinated to metal atom, that changes. Geometrical isomers में जो geometrical distance होता है, that is changing. That is why we call it geometrical isomers. And this is only possible, क्या खास है यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर में, क्या खास है जो टेट्राहेड्रल में नहीं था? The difference is square planar has two types of angles. अगर आप A से B तक का एंगल देखेंगे, if you take the angle between A to B, this is 90 degree. And if you take the angle between A to C, this is 180 degree. So for geometrical isomer to be present, there should be at least two different types of bond angles, जो कि आपके पास किसमें होता है? स्क्वायर प्लेनर में होता है, and you also have the same thing in octahedral. In octahedral also A, B, C, D, E and F अगर हम लिखते हैं, then A to F, A to E, A to B, A to C, all of these are 90 degree, but A to D is 180 degree. A to D कितना हो जाता है? It is 180 degree. This is the reason that octahedral and square planar they have geometrical isomer, लेकिन tetrahedral में नहीं होता. ठीक है, this is the first thing. Now your whole concept of geometrical isomers and खास तौर से उसमें जब हम बात करते हैं cis and trans की, or whatever type of geometrical isomers you are talking, if you are going to talk about geometrical isomer, then you will think about angles. You will not think about opposite or same side. Please ध्यान में रखिएगा इस बात को. You will not think about opposite and same side. You will always think about 90 degree and 180 degree. और उस केस में हम आपको बता देते हैं एक चीज जो बहुत ही जरूरी है याद रखना. If you have 180 degree में जो भी दो होंगे ना, if you have same ligands at 180 degree, ऐसे लिख लीजिए, same ligands at 180 degree, then क्या होगा? उस टाइम वो ट्रांस हो जाएगा. That will be trans. If you have same ligands at 180 degree, then it will be trans. इसको ध्यान रखिएगा. You will always look at 180 degree. ठीक है ना? A के अपोजिट में नहीं देखिएगा, आप क्या देखिएगा? A के 180 में कौन है? तो B है. A के अपोजिट में कोई बोल देगा आपको B भी तो है, A लेफ्ट में है, B राइट में है, तो अपोजिट तो हो गया. So you will not think in that way. What you will think? You will think in the terms of 180 degree. ठीक है? Now A के अपोजिट, A के 180 में C था, अब A के 180 में क्या आ गया है? D आ चुका है. That means these two are different. ये दोनों क्या हो गए हैं? ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो गए हैं. These are isomers now. You will think in those terms. ठीक है?
Now with this, I am going to start with the first case MA2B2. ठीक है, यहाँ पे देखिए A2B2 हमने क्या लिखा है? I have taken the first case, पहला आइसोमर हमने रखा A के, we have kept A and A at R 180 डिग्री. बचा क्या? 2B बचे, A तो हमने कर लिया फिल. अब बचा क्या? 2B बचे. 2B will be also in 180 डिग्री में ही होगा, है ना? इसको हम बनाने का तरीका आपको बताते हैं. हम लिख रहे हैं AABB. आई एम स्टार्टिंग विथ फर्स्ट आइसोमर एंड A के 180 डिग्री में क्या है? A है. We have metal. A के 180 में A है, बचा क्या? BB, तो ये भी कहाँ जाएगा? 180 में ही आ जाएगा. नेक्स्ट एक आइसोमर हम ऐसा बना सकते हैं कि A के 180 में कौन हो? B हो. A के 180 में कौन हो? B हो. So in that case I will write एक A और एक B. बचा क्या? दूसरा A और दूसरा B. So that will be another 180 डिग्री का पेयर. तो 180 डिग्री के पेयर्स में आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है. Now in this first case, as you know, A और A 180 पे है, सेम है, so that will be trans. A and B, these are different ligands at 180 degree. That is why it will be cis. Cis का दूसरा मतलब ऐसा नहीं होता कि different ligands हो. This cis का मतलब होता है same ligands at 90 degree. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. Same ligands at 90 degree, then it will be cis. ठीक है. इसमें और there are some minute points है जो ऑक्टेहेड्रल की इसमें समझ में आएगा. स्क्वायर पेयर में इतना भी आप लोग ये समझ कर रखिए. 180 डिग्री में है. If same pairs are at 180 degree, then it is trans. If same pairs are at same ligands are at 190 degree, then it is going to be cis. All of you are understanding this? Yes or no? Please tell me. बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. ठीक है. What about new students? Sania, Nimra, Arpit? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब देखिए इस थर्ड केस में इसको हम एक बार मिटा देते हैं. We have MA2BC. आपको क्या सोचना है? We have to think only in terms of 180 डिग्री. आप सोचिएगा एक बार A के 180 डिग्री में क्या आ जाएगा? B आ जाएगा. ठीक है, तो आपको मिल गया ये वाला केस. M के A के 180 डिग्री में B, और फिर एक दूसरा एक इसके अपोजिट आ जाएगा, 180 डिग्री ऑफ C आ जाएगा. दिस इज वन केस दैट कैन हैपन. देन यू हैव A 180 to A and A are at 180 डिग्री, और दूसरा क्या बचा? B और C ही बचे बस. तो B and C will be at 180 डिग्री. Now in this case, same ligands at 180 degree is what? Trans, and same ligands at 90 degree क्या हो जाएंगे? cis हो जाएंगे. Now I am taking the third case, जिसमें आप लोग थोड़ा सा हमको हेल्प कीजिएगा. That was MA3BC. MA3BC हो गया MABCD या A2BC. A2BC हो गया MABC and D. ठीक है. Now I am saying, अब स्टार्ट कीजिए A से. A के 180 में आप किसको ले सकते हैं? B को ले सकते हैं. ठीक है, बचा क्या? C और D. M के 180 डिग्री में आप C को ले सकते हैं. बचा क्या? B और D. A के 180 डिग्री में यू कैन टेक D. बचा क्या? B और C. कैन यू टेल मी इसके अलावा और कुछ बचता है ऑप्शन? इज देयर एनी ऑप्शन लेफ्ट? कैन यू टेल मी? ठीक है, प्लीज ट्राई. आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिलेगा. एंड आल्सो इट इज वेरी बेटर देन मेकिंग द स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्चर से अच्छा आप 180 डिग्री का कंसेप्ट लेके चलो. ओके, अब मान लीजिए किसी को लग रहा है सर B और C भी तो 180 पे हो सकते हैं. B और C को पहले ले लीजिए 180 पे. हम लोग ठीक है, B और C को हम ले लिया 180 पे. बचा क्या? A और D. हम बोलेंगे ये केस तो हो चुका है. B और C और A और D वाला सेम ही तो है ना? दोनों क्या है? सेम ही तो है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसी को कीजिएगा. सबसे पहले A का B के साथ, B फिर A का C के साथ, फिर A का D के साथ. तो कितने ज्योमेट्रिक आइसोमर हो जाएंगे? We'll have 3 GIs. Here we'll be having 3 geometrical isomers. एक चीज याद रखिए, स्क्वायर पेयर में कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होता है. Has 0 ऑप्टिकल आइसोमर. ठीक है, इसके केस में ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा. रही बात बाइडेंटेट लिगेंड की, तो बाइडेंटेट लिगेंड के केस में यहाँ पे मैंने बता दिया. So there are 2 cases in which square field complex exhibit geometrical isomer. इसके केस में बाइडेंटेट केस है. जब आपके पास AB2 हो, that means it is unsymmetrical. और दूसरा क्या हो? AB and CD. This AB is a bidentate ligand and CD एक bidentate ligand है. Both of these are unsymmetrical. And जब आपके पास दो unsymmetrical हो जाएंगे, then it is going to show geometrical isomer. If you have symmetrical bidentate, तो कभी वो geometrical isomer show नहीं करेगा. Moving on, let us look at the case when we have octahedral.
ऑक्टेट में एक केस आता है A3B3 का, which is important for FAC and MER। फिर फैक्ट को आप लोग को MER को इसी तरह याद रखना है कि फैक्ट में नो सेम लिगेंड एट 180 डिग्री, उसके दो केसेस बनते हैं, ठीक है ना। एक ये बना हुआ है, हम उसको फिर से बना के दिखाएं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आपको लगेगा कि ये दोनों अलग अलग हैं पर दे आर सेम, वो फैक्ट ही है बस। क्या है नो सेम लिगेंड एट 180 डिग्री? आपने रखा है M, you will have 6 bonds A and A रख दिया आपने, B and B रख दिया आपने। नो सेम लेकिन एट 180 डिग्री, आप देख लीजिए, A के अपोजिट में B, A के अपोजिट में B, A के अपोजिट में B, सारे के सारे क्या है, अलग हैं। नाउ अनदर वे ऑफ शोइंग दिस, अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस इज, हम ये नहीं बोल रहे कि दैट इज अनदर स्ट्रक्चर, अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस इज व्हाट, प्लीज सी। A के अपोजिट में लिख दिया आपने B, A के अपोजिट में लिख दिया आपने इस तरह से, A के अपोजिट में यहाँ पे आपने लिख दिया A B और B, ठीक है। यहाँ पे भी देख लें आप, A के अपोजिट में क्या है, B है, A के अपोजिट में क्या है, B है, A के अपोजिट में क्या है, B। अपेरेंटली ये दोनों आपको अलग अलग नजर आ रहे होंगे, लेकिन जब आप इसका 180 डिग्री के साथ रिलेशन लिखेगा, सो व्हाट यू विल राइट, A के अपोजिट में B, A के अपोजिट में B, A के अपोजिट में B। इस तरह का सिर्फ एक ही केस बन सकता है ना। अब ये दोनों शो करने के अलग अलग तरीके हैं, बस थोड़ा सा मॉलिक्यूल को रोटेट करा दिया गया है, अदरवाइज बोथ ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर सेम। सेम कैसे? बिकॉज 180 डिग्री पे A और B ही है, उसके अलावा कोई है नहीं, दैट इज बोथ ऑफ दीज आर सेम ना। अब उतना टाइम नहीं कि हम आपको 3D केस में बता के दिखाएं, आई हैव अ सॉफ्टवेयर विद फॉर 3D, बट लेकिन आप इसको याद रखिएगा, दीज आर फैक आइसोमर, है ना। फैक में क्या होता है, नो सेम लिगेंड एट 180 डिग्री। मर में आप देखिए, इन केस ऑफ मर आपको क्या चाहिए, एक आप रख दीजिए 180 पे, पहला वाला ही ए आप रख दीजिए। अब बचा क्या आपके पास, यू हैव गॉट 1A एंड 3 B's। अब आप जो मर्जी कीजिए, आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, उसको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपने ए रख दिया, आप कहीं भी रख दीजिए B, ऐसे रख दीजिए आप, नो प्रॉब्लम, इट इज सेम। अगर आप यहाँ पे ऐसे रख देते BA, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी सेम। अगर आप यहाँ पे रख देते, एक सेकंड, इफ यू वुड हैव केप्ट इट हियर, आप B को यहाँ रखना चाहते हैं, A को यहाँ रखना चाहते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अभी भी क्या है, हैव एटलीस्ट वन सेम लेकिन एट 180 डिग्री, तो ये मर हो गया। इन सारे केसेस में आप देखिएगा, wherever you put A and B's, after putting these two at 180 degree, you will get a option of AA। आपको एक AA मिलेगा, एक आपको मिलेगा BB और एक मिलेगा AB। Okay, so these are the only things that you are going to get, nothing else। ठीक है, these are the only, this is one option that you are going to get, और कुछ नहीं मिलेगा। So these are FAC and MER। FAC no same ligand at 180 डिग्री, MER का मतलब same ligand at 180 डिग्री। ठीक है, प्लीज राइट दिस डाउन। आप बोलिएगा सर लेकिन यहाँ तो अपोजिट है, हम बोलेंगे आप एक को क्यों देख रहे हैं, दो को तो देखिए आप, बाकी तो सेम है, सेम एट 180 डिग्री, सेम एट 180 डिग्री। अगर एक भी आ गया सेम एट 180 डिग्री MA3B3 वाले केस में, प्लीज रिमेंबर ओनली इन MA3B3 वाले केस में, तो वो क्या हो जाएगा, मर हो जाएगा, मेरिडोन हो जाएगा। ठीक है, प्लीज राइट दिस डाउन। नेक्स्ट आपके केस में A4BC है और MA4B2 है ना। तो इसके केस में हम ट्रांसवर्सेस अभी आपको नहीं शो करते हैं, लेट मी कीप दिस थिंग्स ब्लैंक राइट नाउ, अब बताते हैं। ठीक है, इसके केस में ट्रांसवर्सेस कैसे लिखा जाता है। A4BC, चलिए कोई हमको हेल्प कर दे प्लीज, थोड़ा आप लोग का भी तो दिमाग लगे। चलिए पहला पेयर बताइए, किसको रख दें हम, व्हाट पेयर शुड बी एट 180 डिग्री, कौन से दो लिगेंड 180 डिग्री में रखना चाहते हैं। चलिए एक एक से पूछते हैं। अभिनव, चलिए हैदर बताना चाह रहे हैं, हैदर बताइए। AA। AA रख दिया आपने, ठीक है। Abhinav, can you tell me what will come next if you have AA? So 2A are gone, we have two remaining A and B and C। अब बताइए, आप अपनी मर्जी से बताइए। Yes, Abhinav। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। चलिए आलिया बताएं, आलिया बताएं। यस आलिया, टेल मी। समझ में आया होगा तो बताएं, मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ये कंसेप्ट समझना 180 डिग्री वाला, लेकिन ध्यान से सुना होगा तो आ गया होगा। आलिया टेल मी। सर से पार हो गया, उनके ऊपर से चला गया क्या आलिया, हमें ऑडिबल? आलिया ने बताया AB, चलिए ठीक है। AB अब तक सही है, बहुत अच्छे जा रहे हैं सब कोई, ठीक है। AB बहुत बढ़िया। अब आगे कोई बताए, तीसरा पेयर क्या बचा, व्हाट इज रिमेनिंग नाउ? AC। AC रिमेनिंग है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, अब आप देखिए, आपने एक को चूज कर लिया, आपने क्या रखा था, ए को रखा था, किसमें आपने रखा था ए और ए को। नेक्स्ट केस में आप क्या रखना चाहते हैं, ए भी रखना चाहते हैं, आप नहीं रख सकते क्योंकि ए भी तो रखा जा चुका है। आप ए भी रखिएगा तो फिर से इसी में फंस जाइएगा, इसी सेम दलदल में। आप एसी रखना चाहते हैं, एसी भी नहीं रख सकते क्योंकि एसी भी यहाँ पे आ चुका है। यू कैन नॉट कीप ए बी, यू कैन नॉट कीप एसी ऑल्सो, सारे केसेस हो चुके हैं। अब आप बचा क्या, बीसी रखना पड़ेगा सर। बीसी रख दिया आपने, अब उसके बाद क्या बचा, ए, उसके बाद क्या बचा, ए। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है कि यहाँ पे सिस कौन सा होगा, ट्रांस कौन सा होगा। ठीक है, सर बोलेंगे सर ये तो फंस गए ना सर, 180 डिग्री पे ए भी है, तब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे सर ये ट्रांस है, फिर हम कहेंगे सर ए तो 180 पे यहाँ पे भी है। तो आपको ये समझना चाहिए कि इफ आई एम गोइंग टू लुक एट द ए लिगेंड्स, तब मसले का हल नहीं है, आई विल नॉट गेट अ सोल्यूशन वेदर इट इज ट्रांस और सिस। तो व्हाट डू वी हैव टू सी, वी हैव टू सी बी एंड सी। बी एंड सी जब 90 पे आ गए तो इसको कह दिया हमने सिस, बी और सी जब 180 पे आ गए तो इसको हमने कह दिया ट्रांस। और ये केस जो है हमारे पास, अब देखिए ए भी क्या है, सिस है, यहाँ पे ए सारे क्या है, ट्रांस है। ठीक है, तो व्हेन यू हैव 4 सेम लिगेंड्स, तो बाकी बचे 2 से हम लोग सिस और ट्रांस को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, so if you have 4 same ligands, then how do we determine trans and cis? Using the remaining 2 ligands, using the remaining 2 ligands। बिल्कुल सेम इसी तरह आपके पास MA4B2 में आ जाए, एक केस बनेगा आपके पास, आपने लिखा AA और BB, एक में आपने स्टार्ट किया AB और AA, देख लीजिए बिल्कुल सही होगा, है ना, और कोई दूसरा केस बन ही नहीं सकता। अब in this case also we have to look at trans and cis with respect to what, A? No, we have to look at trans with respect to B। तो B यहाँ पे 180 पे है तो this will be trans, B और B यहाँ पे 90 पे है तो this will be cis। बात समझ में आ गई सबको, yes or no please tell me guys। यस सर। अरे आया सबको, समायरा, निम्रा, एरम, हैदर, अर्पित को तो आ गया, आया समझ में बाकियों को, Yes, आ sir. गया, ओके फाइन, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए इसको छापिए, आप तो लिया होगा आप लोगों ने, है ना, एक चीज में तो माहिर होते हैं बच्चे, तो समझा रहे हैं नहीं समझा रहे, लिखना जरूरी है। लेट मी नो इफ यू आर डन गाइस, है ना, जो नहीं लिखे वो लिख लें। इफ यू वांट मी टू गो अ बिट अप तो फिर वो भी बता दीजिए, वो भी हम ऊपर चले जाएंगे थोड़ा। लेट मी नो इफ यू आर डन, ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इज देयर एनीवन हु इज स्टिल राइटिंग, सबने लिख लिया लगता है, एनीवन हु इज स्टिल राइटिंग, सर वेट अ सेकंड। वेट अ सेकंड, सर डन। वेरी गुड, मूविंग ऑन। एक केस आता है आपके पास जो हमने बोला था, विच वाज इंपॉर्टेंट, इसको दे दें आप। क्या इंपॉर्टेंट था आपके लिए, MAA होल ट्वाइस एंड A2। ठीक है, तो इसको सबसे पहले इसका सिस फॉर्म देख लेते हैं। इन द सिस फॉर्म दिस A विल बी एट 90 डिग्री, तो ये A और A को हमने 90 डिग्री में रख लिया है। ओके, नाउ प्लीज रिमेंबर ऑक्टाहेड्रल का जो शेप होता है ना, दैट इज हैविंग दीस बॉन्ड्स एट इन द ऑन द प्लेन, देयर आर 2 बॉन्ड्स व्हिच इज गोइंग इनसाइड द प्लेन एंड देयर आर 2 व्हिच इज कमिंग आउटसाइड द प्लेन। वो असल स्ट्रक्चर होता है किसका, ऑक्टाहेड्रल का। Now in that case if you are going to have bidentate ligand, तो bidentate ligand का एक बॉन्ड जो आ रहा है वो पीछे की तरफ से आ रहा है, एक बॉन्ड आगे की तरफ से आ रहा है, तो इस वजह से इसका जो मिरर इमेज बनता है दैट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल। Now this thing is in the right side, और ये दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास, लेफ्ट साइड में आ जाएगा जब आप मिरर इमेज बनाएंगे, दैट इज व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू बी सुपर इम्पोजिबल। ये आपके सिस केस में होता है एंड दिस इज सिस केस। अब जब आप ट्रांस केस बनाइएगा तो ट्रांस केस में आपके पास यू विल हैव A and A अपोजिट टू ईच अदर एंड द bidentate ligands A and A will be also opposite to each other। इसका मिरर इमेज बनाइए, बिल्कुल इसी की तरह बनेगा, आप इसके ऊपर रख दीजिए, सब कुछ सेम रहेगा, देयर इज नो डिफरेंस इन द मिरर इमेज ऑफ द ट्रांस। दैट इज व्हाई MAA2 व्हिच इज अ bidentate ligand, A2 व्हिच इज अ monodentate ligand, इट हैज 3 ऑप्टिकल आइसोमर। 3 क्या होते हैं इसके, 3 होते हैं इसके ऑप्टिकल आइसोमर। 3 में से एक होता है सिस और उसका मिरर इमेज, ये हो गए 2,
और एक होता है ट्रांस। सिस, मिरर इमेज एंड ट्रांस, तीनों मिला कितने हो गए? 3 ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल आते हैं इनसे, प्लीज राइट दिस डाउन। ठीक है, आपको क्या देखना है? यू हैव 2 बाइडेंटेट लिगेंड एंड 2 मोनोडेंटेट लिगेंड, ऐसा वाला केस देखना है आपको। ठीक है ना, आपको तो MA करके नहीं आएगा, एग्जाम्पल देंगे उसको, है ना, जैसे आप सवालों में देखेंगे। यू विल लुक एट एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स में आपको पहचानना पड़ेगा। अब यही है कि किसी बच्चों को बेसिक नहीं पता कि बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है, तो वो आइसोमेरिज्म कर पाएगा, पढ़ के भी नहीं कर पाएगा। बात समझ आ रही है? So you have to know, you have to identify what are the bidentate ligands. जो बहुत कॉमन एग्जांपल्स है बाइडेंटेट लिगेंड का, दैट आर इथाइलिन डायमीन एंड ऑक्सलेट। ठीक है, तो इनको आप ध्यान में रखिए, काफी है। ठीक है, चलिए ऑल ऑफ यू नो द नेचर ऑफ नीट एग्जामिनेशन। नीट एग्जामिनेशन अगर आप उसके सवालों को बनाइएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं। केमिस्ट्री में खासतौर से इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस, तो सवाल टफ नहीं होते हैं, है ना। नीट में सवाल टफ नहीं होते हैं। नीट एग्जाम लेकिन टफ होता है। सर ऐसा क्यों है? वो इस वजह से क्योंकि टाइम कम रहता है, जैसे कि आप लोग को पता है। ठीक है, तो नीट में आपके पास आएंगे आसान सवाल, लेकिन क्लिक 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 करने वाले आपका दिमाग होना चाहिए उस तरह से ट्रेन। ठीक है, ईएन और ऑक्सलेट को बिल्कुल प्यार से पकड़े रहे हैं आप लोग, उन्हीं में से सवाल आते हैं जनरली। ओके, ईएन इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, ऑक्सलेट भी उसी तरह से बाइडेंटेट लिगेंड ही होता है। डन गाइस, सेशन ऑफ द सेल मी। यस बताइए, पहला ही सवाल बताइए। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हिच इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स cobalt Cl2 En Holt wise is geometrical coordination, ionization, linkage। कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा ये? Yes, Arpit, very good, correct। देखिए इसमें यही है, नीट में आपको आंसर सीधा पता होना चाहिए ऑप्शन के बिना, तब आप लोग सही कर पाइएगा नीट में। ठीक है, आप ये देखने मत चलिए इसमें ज्योमेट्रिकल होगा या नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन होगा या नहीं होगा, आयनाइजेशन होगा या नहीं होगा, लिंकेज होगा या नहीं होगा, ये देखने में टाइम चला जाएगा आपका। यू हैव टू नो इसमें क्या होता है पहले से ही, विदाउट दी ऑप्शंस। तो लिगेंड्स को आइडेंटिफाई कीजिए। द होल थिंग अबाउट आइसोमेरिज्म इज ओनली अबाउट लिगेंड्स। लिगेंड्स को आइडेंटिफाई कीजिए। अभी तो एग्जांपल गया, एक ही आंसर आया बच्चे का, अर्पित का। भाई किसी का आ ही नहीं रहा है, मुझे चलिए बताएं, चैट में ये बताएं, क्लोरीन जो है कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, पॉलीडेंटेट है? व्हाट टाइप ऑफ लिगेंड इज दिस? प्लीज टेल मी इन द चैट। क्लोरीन इज व्हाट? मोनो, बाई, ट्राई, क्या है? सही है समायरा, वेरी गुड। बाकी लोगों को नहीं आ रहा, प्लीज बताएं ना। हाँ, यस अर्पित, आपने तो खैर आंसर कर ही दिया। बाकी लोग बताएं, आलिया, अन्ना, हैदर, इरम, निमरा, समायरा, सानिया। समायरा ने आंसर कर दिया, यस यूनिडेंटेड मोनोडेंट, वेरी गुड। ईएन क्या है आपके पास? ठीक है, अब चमक रहा है लोगों को, ये सालिया। ईएन क्या है? बाइडेंटेट है। तो अभी तो हमने एग्जांपल दिया, अब बताइए आइसोमेरिज्म कौन सा होगा? किसके केस में पढ़ रहे थे हम सारे? इसका सिस और ट्रांस होगा ना, इसका एक सिस होगा एक ट्रांस होगा। ठीक है, सिस और ट्रांस का किस में आता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आता है। ए विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। ठीक है, बाकी इतना नहीं देखना कि इसमें ये होगा कि नहीं होगा, बाकी उस तरह से भी जा सकते हैं, लेकिन वो समझाने के लिए, एग्जाम में वैसे नहीं करना आपको। कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं है, इट इज नॉट अ कोऑर्डिनेशन आइसोमर बिकॉज वी डोंट हैव टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन एंटिटी। It is not an ionization isomer because we don't have any ions outside the coordination sphere। तो बाहर कोई जाएगा नहीं, अंदर कैसे? अंदर बाहर से अंदर आना चाहिए ना, तभी तो ionization isomer बनेगा। You don't have any ions outside the coordination sphere, that's why it is not an ionization isomer। Linkage isomer, it is not a linkage isomer, why? Because we don't have any ambidentate ligand। इस तरह से भी आंसर कर सकते, लेकिन वो एग्जाम में करने लायक नहीं है इस तरह से कि आप सारे ऑप्शंस को देखते रहे। चलिए ये बताएं, ये तो बिल्कुल अभी कराया हमने, सेम कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं हम, सेम कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो सेम है कम से कम। ठीक है, En2 Cl2। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर, सारे आइसोमर बताने आपको कितने होते हैं? हाउ मेनी आइसोमर डज दिस हैव? नोट में लिखाया हुआ चीज है ना, लिखवाई हुई चीज है, ये एग्जांपल नहीं है, लेकिन फॉर्मेट आपको देंगे ना जनरलाइज्ड वाला। ऐसा नहीं कि सारे एग्जांपल्स लिखने लगे, इनमें इतना होता है, इनमें इतना होता है, इनमें इतना होता है, फिर तो आप याद कर सकते पागल हो जाइएगा।
Oh my God, इतना टाइम लगना चाहिए, जल्दी बताएं। हाउ मेनी आइसोमर्स, अभी पढ़ा है बिल्कुल हम लोगों ने। अच्छा हैदर, ओके समायरा, ओके अर्पित। हैदर कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन। Yes, sir. क्या हो गया आज? यस हैदर, Yes, sir. आज क्या हो गया आपको? आपका तो बिल्कुल सही नहीं जा रहा है, मतलब आपको रीअटेम्प्ट करना पड़ जा रहा है सारे सवालों में। फिर से देख, फिर से बताइए कितना होगा। क्या लिखा है हमने? फिर बाइडेंटेड लेजेंड है तो 2 होंगे। नहीं, हमने बताया था ना अभी। अरे ये तो ये वाला केस है ना, MA2 AA2 वाला। बाइडेंटेट लिगेंड 2 है, मोनोडेंटेट लिगेंड 2 है, तो क्या होगा इसका? एक सिस होगा, एक सिस का मिरर होगा, और एक ट्रांसफॉर्म होगा इसका। ओके सर। अब फॉर्मेट तो समझे ना, ये केस है MAA होल ट्वाइस A2, टू बाइडेंटेट, टू मोनोडेंटेट लिगेंड्स। इसमें तो रट के जाना आपको, इस वजह से इतने सारे सवाल करा, नोट में भी लिखाया हुआ है। ठीक है, 3 आइसोमर होंगे, एक सिस का मिरर इमेज और एक ट्रांस। ये बताइए आप। सॉरी, इन अ पर्टिकुलर आइसोमर ऑफ CONH4 एंड Cl2। अब ये देखिए केस कौन सा है। M A के 4 हैं, B के 2 हैं। क्या बोला इन्होंने? क्लोरीन कोबाल्ट क्लोरीन, एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री किस वजह से? आंसर आइसोमर कौन सा होगा? वेरी गुड अर्पित। देखिए, वन जो हम बहुत इंपॉर्टेंस देके इस चीज को बोलेंगे कि इफ यू आर डूइंग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो करके जाइए अच्छे से, बहुत सवाल आते हैं। एंड द अदर थिंग इज दैट आइसोमेरिज्म में अगर आपने अभी तक 90 डिग्री 180 डिग्री का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो थोड़ा टाइम लगा के इसको पढ़ लें। जो भी चीजें आपने समझी हैं अभी तक, रिमेंबर इट इन टर्म्स ऑफ 90 एंड 180 डिग्री। बिल्कुल, अब देख रहे हैं, आज की बात नहीं है ये 2013 की बात है। उस टाइम से ही लोग 90 डिग्री 180 डिग्री सवाल में पूछ रहे हैं। ठीक है, सो अपोजिट और सेम साइड जिसने भी याद करके रखा है प्लीज उसको भूल जाए, है ना, प्लीज उसको भूल जाए। शेर है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो उर्दू। याद माजी आजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। तो दैट इज एप्लीकेबल। जो लोग गलत, मतलब गलत नहीं, अप्रोप्रिएट कंसेप्ट नहीं याद कर, सेम साइड और अपोजिट साइड गलत नहीं कहेंगे, इट इज नॉट वेरी अप्रोप्रिएट इन टर्म्स ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन। ठीक है, शेर क्या कहा हमने? यादें माजी आजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। यादें माजी, मेमोरी ऑफ द पास्ट। आजाब है यार, आजाब का मतलब एक पनिशमेंट है मेरे लिए, है ना, पुरानी चीजें हमें याद रहती हैं। यादें माजी आजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। टेक अवे माई मेमोराइजेशन पावर, जो मेरी मेमोरीज है ना उनको ले लीजिए आप। ठीक है, ऑल्दो दैट वाज इन सम अदर कंटेक्स्ट, बट अप्रोप्रिएट कंसेप्ट्स के बारे में भी आप इसको कह सकते हैं कि आजाब याद माजी आजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा, है ना। आज से आप लोग दुआ करना स्टार्ट कर दीजिए, याद माजी चाहे किसी की भी याद हो वो भी चली जाएगी आपकी, है ना, तो उससे भी सुकून। और कंसेप्ट्स के इंटेंट रखते हुए, याद माजी आजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। ठीक है, तो कोबाल्ट है एंड वी हैव क्लोरीन एंड क्लोरीन एट 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए हमने जो लिखाया था, हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल भी इन्होंने किसका दिया है? द टू लिगेंड्स व्हिच आर, इफ फोर आर सेम लुक एट द अदर टू। सवाल बिल्कुल वहीं से बन रहा है। इफ फोर आर सेम लुक एट द अदर टू, एंड इफ दे आर एट 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा। अगर ये कहते NH3 NH3 इज एट 90 डिग्री तो आइसोमर क्या होगा? तो हम बोलते हैं हमको नहीं पता क्या होगा। वो सिस भी हो सकता है, वो ट्रांस भी हो सकता है। ठीक है, अगर NH3 के बारे में कहते हैं तो वो सिस भी हो सकता है और ट्रांस भी हो सकता है, बिकॉज आप देखिए एक बनेगा आपके पास NH3 ये तो 180 डिग्री हो गया। दूसरा आपको बनाना पड़ेगा किसके लिए? NH3 और NH3 आपने बना दिया, और तीसरा बनाया आपने क्लोरीन एंड क्लोरीन। ये सारे किसमें? 180 डिग्री 180 डिग्री। अब ये बताइए व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू?
ये बताएगा हमें व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू NH3? 90 डिग्री। 90 डिग्री। लेकिन है तो ये ट्रांस, तो क्या इसकी वजह से ट्रांस है? नहीं, ट्रांस किसकी वजह से? इसकी वजह से ट्रांस। ठीक है, सो wherever you have four same, right? Whenever you have four same ligands, look at the other two, है ना? तो नजरें घुमा लेनी है, बाकी दो को देख लेना। चलिए सेम सवाल देख रहे हैं आप, चलिए बताइए। टेल मी इन दिस केस 180 और 90 का कंसेप्ट जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वैसे ये जी का हमको जहां तक लग रहा है, दिस इज फ्रॉम जी, लेकिन फिर भी बताएं इसमें फैक और मर के केस में क्या है? क्लोरीन कोबाल्ट क्लोरीन बॉन्ड एंगल वैल्यूज फॉर फैक। फैक आइसोमर में क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैक आइसोमर? No same ligand at 180 degree. तो 180 पे अगर नहीं है तो बाकी कहाँ होगा? 90 पे होगा। बात समझ में आ रही है? ऑक्टेट में Yes. दो ही तो होते हैं, ऑक्टेट में आपके पास दो ही एंगल्स होते हैं, या तो आपके 180 डिग्री होगा या तो 90 डिग्री पे होगा, है ना? और अगर 180 पे नहीं है तो 90 पे होगा। अच्छा, अगर हम वही अगर इस ऑप्शन को हम हटाते हैं अभी और बात करते हैं मर की, मर में बताइए क्या होगा ऑप्शन? व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर मर? नहीं अर्पित, ये फंसे आपको Sir, both मर, सॉरी 90 and 180. हाँ दोनों होगा, है ना? आई होप नाउ यू रिमेंबर गाइस। इफ आई एम टेकिंग द केस ऑफ मर, तो मर में क्या होता है? एक तो आपने क्या रख लेना है, यू हैव टू कीप वन एट 180 में तो रखना ही है आपको, तो क्लोरीन एंड क्लोरीन आपने रख दिया 180 डिग्री पे। अब उसके बाद एक क्लोरीन आप रखिएगा कहाँ? एक क्लोरीन तो 90 पे रखना ही पड़ेगा, एक क्लोरीन तो 90 पे रखना ही पड़ेगा। ये दोनों किसमें आ गए? 90 डिग्री पे आ गए, तो 180 पे भी है और 90 पे भी है, किसमें? मर में। ठीक है, तो दो सवाल हो गए आपके पास। फैट में क्या होगा? सिर्फ 90 डिग्री पे होंगे COCl बॉन्ड्स, और मर में 180 और 90 दोनों में होंगे। डन एवरीवन? यस नो प्लीज टेल मी। यस लिख लिया सबने? Yes, sir. चलो। सानिया को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये सानिया, या वही टेस्ट लेते हैं? नहीं लगता क्लास में ये सानिया नहीं है लगता क्लास में। हाँ नहीं, चलिए ट्राई दिस वन। कायरल कॉम्प्लेक्स हम बता देते हैं व्हाट इज कायरल, अगर आप लोगों ने मतलब भूल गए। कायरल का मतलब क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स विच विल शो ऑप्टिकल आइसोमर, है ना? तो इसमें बताना आपको सीधा सीधी ऑप्टिकल आइसोमर किस में होगा। आप केसेस को दिमाग में रखें, कितने मोनो कितने बाई, कितने मोनो सेम, कितने A4BC, इस तरह वाले केसेस को दिमाग में रखें प्लीज, ठीक है ना? तो आप पागल हो जाएंगे। आपको दिया हुआ है सिस PtCl2En होल ट्वाइस, आप क्या लिखिएगा? सिस फॉर्म ऑफ मेटल A होल ट्वाइस, इस तरह से दिमाग में रखें। कोबाल्ट में 4 सेम और 2 बाकी से, ट्रांस ऑफ M A4B2, फिर यहाँ पे क्या आ गया? ट्रांस ऑफ M A2A होल ट्वाइस। नेक्स्ट व्हाट वी हैव सिस ऑफ M A2B2, ठीक है? चलिए देखिए, दोनों तरीके से आप आंसर को कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं यूजिंग टू कंसेप्ट्स, और अगर याद है तो आप सीधा ही मार दीजिएगा किस केस में ऑप्टिकल आइसोमर होता है। अगर आपको लग रहा है किसी, मान लीजिए आपको एक का पता बाकी का पता नहीं होगा या नहीं होगा, है ना? आपको ऑल ऑफ यू नो दैट देयर इज वन ऑप्शन व्हिच इज करेक्ट, आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ देम, तो आप उसी को टिक कीजिए। लेट अस सपोज दैट वाज अ रॉन्ग क्वेश्चन जहां पे मल्टीपल ऑप्शन सही थे, देयर वर मल्टीपल ऑप्शन व्हिच वर करेक्ट, यू हैव टिक्ड वन ऑप्शन ना, तो उस केस में क्या होगा? आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। उसमें क्या हो जाता है? ईदर और हो जाता है। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में ए और सी में करेक्ट आंसर है, आप ए को टिक कीजिए चाहे सी को टिक कीजिए, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे।
ठीक है, सो इन दिस केस में एमसीक्यू में तो इतनी आसानी है कि अगर आपको एक सही पता है टिक कर दीजिए उसे। यस, अन्ना करेक्ट, वेरी गुड, आइडेंटिफाई कर लिया आपने। नहीं हैदर, गलत है हैदर, आप थोड़ा सा नोट्स या तो आप सही कर लें, आई थिंक यू हैव रिटन रॉन्ग नोट्स जिस तरह से आपने आंसर किया है, या फिर नोट्स को दोबारा देख लें एक बार जहां से आपने आंसर लिखने की कोशिश की। ठीक है, प्लीज लुक एट योर नोट्स, करेक्टेड। हाँ, आलिया वेरी गुड, करेक्ट, सही है। See, there are two ways in which you can answer this question. एक है सिलेक्शन और एक है एलिमिनेशन। ठीक है, दोनों से आंसर कर सकते हैं, ऐसा नहीं। यू कैन सेलेक्ट, यू कैन ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन कैसे आ सकता है, सिलेक्शन से भी आ सकता है, एलिमिनेशन से। देखिए दोनों बताते हैं हम। पहले हम केस ले लेते हैं सिलेक्शन वाला। सिलेक्शन वाले केस में 12 हमने बता दिया है, 2 मोनो एंड 2 बाइडेंटेट लिगेंड। ये मोनो हो गया, ये बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। इसके सिस फॉर्म का क्या होगा, एक मिरर इमेज होगा, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन से, ये तो जिसको याद है। अगर किसी को नहीं याद तो हम आपको बताते हैं, इसी हमने लिखाया था आपको, इफ सेम लिगेंड्स आर प्रेजेंट at 180 degree, then it will not show optical isomer। लिखाया था नहीं लिखाया था, बताएं। टेल मी गाइस, यू हैव दिस पॉइंट इन योर नोट्स, यस और नो? आलिया, हैदर, इरम, समायरा, है या नहीं है? अरे बताएं ना, कुछ बोले तो सही, बोल ही नहीं रहे। आवाज ही नहीं आ रही, हमें नहीं आवाज आ रही। इरम टेल मी, समायरा टेल मी, सानिया टेल मी, इज दिस पॉइंट देयर इन योर नोट्स? Same ligands are present at 180 degree, then it will not show optical isomer। Yes, sir. है ना, देखिए, whenever same type of ligand placed at 180 degree, it will not show optical isomer। ठीक है, तो इससे क्या, इससे हमें ये कि these two option तो हम काट देंगे। कौन से दो ऑप्शन को? ट्रांस वाले दोनों ऑप्शन को आप काटिएगा, बिकॉज ट्रांस है, that means there is at least a pair of ligand which are same ligands and at 180 degree। ठीक है, तो ट्रांस को तो काट दिया आपने, बचा सिस, एंड इन सिस वी हैव स्क्वायर प्लेनर। ये भी हमने लिखा है कि स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमर्स होते ही नहीं है, ये भी कट गया, बचा क्या, एक। दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं, सिलेक्शन और एलिमिनेशन, इससे ऑप्शन ये हो जाता है। ठीक है, बट अगेन 12 हम कह रहे हैं, रट लीजिए इस वाले केस को, 2 मोनो 2/3 ऑप्टिकल आइसोमर विथ 1 सिस, उसका मिरर, सिस और मिरर ऑप्टिकल आइसोमर, ट्रांस हो गया आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, रट लीजिए इसको, रट। ठीक है, रट लीजिए, कितने सवाल आए ना इससे, देखिए सेम सवाल है या नहीं है। मेटल 2/2 मोनो, मेटल 2/2 मोनो, कंसिडर द कॉम्प्लेक्स दिस वन। इसका ट्रांसफर और सिस फॉर्म के बारे में पूछा है, सो ट्रांसफॉर्म का तो ना ही कोई मिरर इमेज होगा, ना ही ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा इसके, इसका होगा ऑप्टिकल एक्टिव, है ना, ऑप्टिकल आइसोमर होगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन ये होगा कि सी वाला, ए कैन नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव बट बी कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव। सर मिरर इमेज इज द ओनली केस ऑफ OI। देखिए ऑप्टिकल आइसोमर जो होगा वो सिस फॉर्म का होगा और इसका मिरर इमेज होगा। ठीक है, सो ये इसका ऑप्टिकल आइसोमर है और ये इसका ऑप्टिकल आइसोमर है। बात समझ में आ रही है इधर? Yes, sir. है ना, तो जो अगर दो भाई होते हैं ना, तो ये रिलेशनशिप है, आइसोमरिज्म रिलेशनशिप। भाई होते तो ये नहीं पूछा सर ये इसका क्या होगा, तो बोलेगा भाई होगा, तो फिर उसका क्या होगा, उसका भी भाई होगा, है ना। तो दोनों एक दूसरे में क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के भाई होंगे। तो वही केस है आपके पास इसमें ऑप्टिकल आइसोमर में, ये इसका ऑप्टिकल आइसोमर, वो उसका ऑप्टिकल, सिस वाला मिरर का ऑप्टिकल आइसोमर, मिरर वाला सिस का ऑप्टिकल आइसोमर, ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, इसका भाई वो उसका भाई, दोनों एक दूसरे के भाई। ठीक, तो सिस एंड मिरर इमेज आर व्हाट, दीस आर ऑप्टिकल आइसोमर। सिस के केस में ही मिरर इमेज होगा और उसका ऑप्टिकल आइसोमर होगा सिस के केस में।
ठीक है, तो हियर वी हैव 2 ऑप्टिकल आइसोमर और एक ट्रांस आ गया आपका। सिस और ट्रांस क्या हो गया आपके पास? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आप इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा अच्छा ठीक है, ये आ गया तो हम इसको बता ही देते हैं। इसके 2 जीआई हैं और 2 ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। अब अगर पूछा जाए टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, हाउ मेनी टोटल स्टीरियो आइसोमर्स डू वी हैव? अब लोग लिख देंगे 4 सर, 2 ओआई 2 जीआई। बोलेंगे नहीं भाई, सिस यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। सिस दोनों के केस में, ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर दोनों केस में, दैट्स व्हाई इट विल बी हैविंग टोटल 3, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर, बाद में कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि 2 ओआई है और 2 जीआई है तो सर 3 नहीं 4 होना चाहिए, तो 3 ही होगा बिकॉज सिस दोनों के केस में आ रहा है, ठीक है। चलिए, इस केस में तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये लास्ट ऑप्शन आप इसको लिख लीजिए जरा, तो शायद सवाल आ जाए। वी हैव एन आइसोमर, ठीक है, और उन्होंने पूछा है क्या है ये, ट्रांस है, सिस है, क्या है। तो इसमें देखिए, आपको देखना सबसे पहले टाइप कौन सा है। तो टाइप है आपके पास MA4B2, है ना, 4 ए है आपके पास, B2 है, तो B2 को देखना है आपको। व्हेन यू हैव 4 सेम लिगेंड्स, लुक एट द अदर, लुक एट द अदर। तो 2 B को देख लीजिए, दोनों एक के 180 डिग्री में है, दैट इज व्हाई दिस विल बी ट्रांस, है ना। दूसरा, इन्होंने थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करने के लिए लेवो डेक्स्ट्रो वगैरह लिखा हुआ है, सिस तो नहीं हो सकता बिकॉज ऑल ऑफ यू कैन सी दैट, बिकॉज बी और बी अपोजिट है ना, सेम बी और बी 180 पे 90 पे नहीं है। बट नोट में आपने ये लिखना है कि लेवो और डेक्स्ट्रो कैन ओनली बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, वी कैन नेवर प्रेडिक्ट बाय लुकिंग एट द स्ट्रक्चर। तो ठीक है, लेवो डेक्स्ट्रो आप कभी भी आंसर मार्क के बता जाइएगा अगर स्ट्रक्चर सब दिया हुआ है तो। If they are not talking about the optical rotation, if they are not saying whether it is going rotating the plane polarized light in the rightward clockwise या anti-clockwise direction, तो उसमें आप लेवो और डेक्स्ट्रो की you cannot write anything, है ना, you cannot predict लेवो है या डेक्स्ट्रो। दूसरी बात जो हमने बताया था आपको, चेक द लिगेंड, इसको आप और अच्छे से लिख सकते हैं। पहले लेवो और डेक्स्ट्रो वाला नोट लिख लीजिए एंड देन राइट। If 4 same ligands are present, then look at the other 2. इसमें 2 केस बनेंगे। अगर वो दोनों 90 डिग्री पे हुए तो सिस फॉर्म हो जाएगा, अगर वो दोनों 180 डिग्री पे हुए तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। Other 2, if at 90 degree then cis, 180 degree then trans. अभिनव, आपको समझ में आया क्लास में? यस अभिनव, बीच में आप चले गए थे।